Yes, good evening to everyone. Good evening to all of you, and welcome back to the class of current affairs. I hope all of you are well at your places. So today we are going to cover up the current affairs, important current affairs for the month of October 2020. Okay, so without wasting any time, let's start. Okay, so I hope you are able to see the notes on your screens. Okay, so I'm just zooming it more so that all of you may be able to see. Now, if anyone who is having any problem or facing any kind of problem while watching this text, so please let me know. Okay, so let's start the current affairs for the month of October 2020. Point number one is now following the COVID outbreak, thousands of migrant workers across the country were left unemployed. The state of Nagaland The state of Nagaland registered 15,019 of such migrant workers who returned back to the state out of a total of around 27,000 returnees. To address this issue, the Department of Industry and Commerce launched the portal of Livelihood Generation Program. This is the important one. Okay, the Livelihood Generation Program for return migrant workers due to COVID-19 pandemic, initiated by the Department of Industries and Commerce and funded by the Northeastern Council NEC, Shillong. The program aims to support 100 new enterprise by year end. So let us discuss more about this first point. Students, as we all know that we all are facing the COVID-19, okay, from past year, and this year in December, it almost 1 year that the entire world is facing this pandemic. Now, what we have seen in this year's March and April, when there was a total lockdown or shutdown in India, that thousands and thousands of migrant workers from different types of states, whether from the northeastern, whether from Bihar or Uttar Pradesh or Jharkhand or Odisha or wherever, they were stuck at the metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, okay, Chennai, etc. Now, due to the shutdown, okay, should I say, sir, would you please upload this PDF so that we could also keep marking the important terms together with you? It cannot be possible, Ashweta, right now. Okay, you can do one thing, beta. If you are having the writing material with you, any kind of uh, paper or any kind of notebook. So please write down those words. Okay, that from point number one, I have just marked those points, those words which I marked right now, so that you can write down. And I will tell you that what type of questions that may ask in your examination. Okay, so the thousands of migrant workers who were stuck in the different places of the country, after a few days, their money got vanished, and they were suffered to earn the livelihood. And we have seen the entire country have seen that thousands of laborers and the workers, they walk from their places towards their native places. So उस कंडीशन में सबसे पहला स्टेट इंडिया में जिसने लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, that was Nagaland, northeastern states. Nagaland capital is Kohima. Okay, what is livelihood generation program? Actually ये प्रोग्राम उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स, जो कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से किसी प्लेस पर स्टक कर गए थे, फंस गए थे during the time of complete lockdown. And when they return back to their native places, like in Nagaland, so अब उनके पास में they were not having such kind of livelihood to earn, कोई जॉब नहीं थी, मनी नहीं था, etc. Okay, and they were not able to return back to their places जहाँ पर वो work कर रहे थे. So that the Nagaland government along with the Northeastern Council, uh,
Okay, we'll try, Shweta. We'll try to that one. Okay, I'll convey this message to the authority and they will do the needful. Okay, so Northeastern Council NEC, Shillong, combinedly with the Nagaland state government, they launched this kind of program, livelihood generation program. Okay, so Nagaland became the first Indian state to launch this one. This is the first Indian state to do that. What to do that? The livelihood generation program. For whom? For the returned migrant workers due to the COVID-19 migrants. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, और बाद में इसमें काफी सारे अलग अलग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना भी शुरू किया. The other enterprises also entered in this one to help this one. चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का. The Prime Minister inaugurated nation's first museum on Ganga. Most important. देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, whatever that is first this or first that, वो डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. So the first museum on Ganga. Now here Ganga is the Ganga River. On 29th of September, it has been dedicated to put light on. किसके लिए है ये? Biodiversity, rejuvenation and culture in Ganga River. ये तीनों चीजें याद रखिएगा everyone. Nation's first museum on Ganga River. And for what purpose? This museum is dedicated to Ganga. For what purpose? Okay, to light on the biodiversity. We all know that Ganga is the longest river of India. Okay, and the 9th longest in the world. The Ganga and the Brahmaputra, top 10 rivers में आती है ये. And it is also known as the lifeline of India. Ganga is originated from the Gangotri Glacier in the Uttarakhand, from a place called Gomukh. Okay, and तो ये बहुत सारे स्टेट्स में से होकर गुजरती है, from Uttarakhand towards the Uttar Pradesh, then moving to Bihar, then West Bengal, and finally entered into the Bay of Bengal, along with the Brahmaputra River, and created world biggest delta that's known as the Sundarban Delta. Getting the point? Now इतने जगहों से गुजरने के बाद में गंगा रिवर जो है कई सारी बायोडाइवर्सिटी, गंगा रिवर के आसपास में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी. Whether we are talking about the Ganga dolphin, okay, गंगा डॉल्फिन अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का जो नेशनल एनिमल है that you all know, but इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? That is the dolphin of गंगा. ओके, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. तो बायोडाइवर्सिटी इज वन सेगमेंट. सेकंड वन इज रिजुवेनेशन. रिजुवेनेशन मींस गंगा जहां जहां पर से गुजरती है, ओके, इट्स नॉट प्योर एट एवरी प्लेस. सो व्हाट आर द वेज टू रिजुवेनेट दैट गंगा रिवर? उसके क्या क्या किया जा सकता है? जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसी में ही आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं. नमामि गंगे, ओके, प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट गंगा क्लीनिंग के लिए, गंगा की सफाई के लिए चलाया गया था. नमामि गंगे प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी इसी फॉर्म में आएगा. एंड कल्चर इन गंगा रिवर. गंगा रिवर में कौन सा कल्चर हो सकता है? इट मींस द रिवर जहां जहां से, जिन जिन स्टेट से, जिन जिन सिटीज से होकर गुजरती है, वहां के कल्चर को. फॉर एग्जांपल अगर हम गंगा कल्चर की बात करें, हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी याद आती है, दैट इज बनारस, और व्हाट यू कॉल द वाराणसी, बिकॉज दिस इज द ओनली सिटी वेयर गंगा जो है वो अपने उल्टी तरफ में ये मूव करती है. नॉट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट एंटी क्लॉकवाइज. वापस मुड़ती है, उल्टी तरफ जाती है. So Banaras is one such example of the culture in Ganga. हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा, भी all know गंगा आरती होती है. ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो गंगा रिवर पर बेस्ड है. So that can be there. The museum is located in चंडी घाट, that is in हरिद्वार. अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां पर एक चंडी घाट है. ठीक है, हर की पौड़ी से थोड़ा आगे चलकर जो आपका ऋषिकेश वाला जो रूट है उसी पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा. दैट इज इन हरिद्वार. द रिवर इज सिग्निफिकेंट इन रिगार्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर दैट आई टोल्ड यू. आफ्टर ड्राइंग ऑफ रिवर सरस्वती
and later migrating away from the Indus Valley civilization, we have seen Indian culture nourished in the Gangetic Valley. ओके सो गंगेटिक वैली, गंगा की जो वैली है, गंगा वैली मींस जहां से गंगा रिवर मूव करती है उसके आसपास का एरिया, whether that is the Dev Prayag, Karn Prayag, Rudra Prayag, all five Prayagas that is in Uttarakhand we can have. okay और उसके बाद में जो रिवर उत्तर प्रदेश के कई सारे एरिया से गुजरती है, लाइक कानपुर, लाइक बनारस और वाराणसी, ठीक है, देन बिहार में जाती है फ्रॉम पटना, ठीक। तो ये वहां पर बहुत अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी और कल्चर को शोकेस करती है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर से बनेंगे। जैसे आपसे जरूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज नेशंस फर्स्ट म्यूजियम वाज फॉर गंगा इज सिचुएटेड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गंगा के लिए या गंगा क्लीनिंग के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो नमामि गंगे यू हैव टू गिव द आंसर। मोर ओवर प्लेस पूछ लिया जाएगा कि किस प्लेस पर नेशंस फर्स्ट म्यूजियम हो गया था, किसने इनॉग्रेट किया, वो जनरली में क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि इसको हम थर्ड प्लेस पे रखते हैं क्वेश्चंस की कैटेगरी में। हाँ, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे फॉर बायोडाइवर्सिटी, रिजुविनेशन और कल्चर इन गंगा रिवर। इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए वी आर हैविंग दिस म्यूजियम। ओके क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं। Now the BrahMos surface to surface supersonic cruise missile featuring indigenous booster and airframe section along with many others made in India subsystem was successfully flight tested in from ITR Balasore Odisha। ये याद रखिएगा, जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स जितनी भी मिसाइल्स की लॉन्चिंग होती है वो बालासोर से होती है, ओडिशा में, ठीक है। ITR का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ओके, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR का मतलब ये होता है। ये बालासोर ओडिशा, बालासोर ओडिशा के पास में एक छोटा सा आप एक आइलैंड मान सकते हैं, वहां से सारे के सारे इंडिया की, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स या फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सबका यहीं से टेस्ट फायर होता है। इट इज वन मोर मेजर स्टेप इन एनहांसिंग द इंडिजिनियस कंटेंट। द ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM, जिसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट का, ठीक है, LACM ब्रह्मोस का लैंड अटैक क्रूज मिसाइल वाज क्रूजिंग एट अ टॉप स्पीड ऑफ मैक 2.8, ठीक है। मैक 2.8 ये आपकी वॉइस से ज्यादा तेज स्पीड को काउंट करता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल is both you can have the ballistic missile and the supersonic cruise missile। दोनों में फर्क होता है मिसाइल्स के बारे में। डिफेंस का जो हम सेगमेंट करेंगे एक छोटा सा, उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, क्रूज का मीनिंग आप समझ गए होंगे जी, यानी कि एक जैसे हमारी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता है ना, कार में क्रूज कंट्रोल आप लोगों ने देखा होगा दैट ऑन ए पर्टिकुलर स्पीड पर आप सेट कर देते हैं क्रूज कंट्रोल को, तो उसी स्पीड पर गाड़ी चलती रहेगी। तो क्रूज का मतलब ये हुआ। व्हाट इज सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी दो कंट्रीज ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया है? ऑब्वियसली पहली कंट्री तो इंडिया होगी, लेकिन दूसरी कंट्री कौन सी है? एनीवन हु कैन गिव मी दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ब्रह्मोस में हमेशा पूछा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल इज एक्चुअली डिजाइन्ड बाय टू कंट्रीज, वन इज इंडिया, which is the second one? Just give me the answer. Meanwhile, I'm just telling you the other points. अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो सरफेस टू सरफेस है, यानी कि सरफेस से सरफेस पर ही ये हिट करेगी। अलग अलग मिसाइल्स वी आर हैविंग फ्रॉम सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, ठीक है, तो बहुत सारी होती हैं अलग अलग। तो ये सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिजिनियस बूस्टर है इसमें। इंडिजिनियस माने मेड इन इंडिया, इंडियन, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें स्टूडेंट्स? बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्शन अलॉन्ग विद मेनी अदर मेड इन इंडिया सब्सिस्टेंस। एयर फ्रेम सेक्शन प्लस बूस्टर दोनों चीजें इसके अंदर में, और ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, यानी भारत में ही बना हुआ ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। प्रांजल इज सेइंग रशिया, एब्सोल्युटली करेक्ट प्रांजल, गुड वन।
BrahMos missile has been designed and created by two countries. One is India and second one is Russia. Okay, and BrahMos, it is the BrahMos जो नाम रखा गया है ये दो रिवर्स को लेकर चला गया. BrahMos, you know, ब्रह्मपुत्र and second one is Russia's river. तो दो रिवर्स को मिलाकर ब्रह्मोस नाम दिया गया है, इंडिया की ब्रह्मपुत्र और एक रशिया की रिवर. Yes, Gitanjali Sharma is absolutely correct. Russia is correct answer. Thank you so much for giving these correct answers. Okay, तो important चीज क्या है स्टूडेंट इसमें? सबसे पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल में जो बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन लगा है दैट इज मेड इन इंडिया है. ठीक है, और इस पूरे के पूरे जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? द LACM, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल. लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स दैट a missile which is supersonic cruise missile and hit from surface to surface, यानी जमीन से जमीन पर हिट करने वाली ये मिसाइल है ब्रह्मोस. ब्रह्मोस अकेली ऐसी मिसाइल है जिसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है, बैलिस्टिक भी और सुपरसोनिक भी. एज आई टोल्ड यू दैट जब डिफेंस वाला सेगमेंट हम करेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड व्हाट इज सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, और इंडिया वहां पर कहां तक सेट करता है. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट नंबर 3. लेट अस मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 4. Okay, point number 4 is Industrial Development Bank of India, that is IDBI, became the first, again the first to implement the new feature of document embedding facility with letter of credit oblique bank guarantee messages over SFMS. SFMS का मतलब होता है Structured Financial Messaging System. It is a platform of Indian Financial Technology and Allied Services, IFTAS. इसको समझ लीजिए पहले थोड़ा सा. The process would be conducted via a middleware application, और उस middleware application का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, तो जिस I@connect SFMS developed by IDBI Intech. ये है क्या समझिए. सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI. एक इसका दूसरा भी छोटा भाई है जिसको हम कहते हैं SIDBI, SIDBI, SIDBI. इट मींस स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. IDBI बैंक जो सेटअप हुआ था स्टूडेंट्स, ये कोई नॉर्मल बैंक नहीं है. नंबर 1, इसमें कोई कॉमन पर्सन अपना जाकर अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता. ठीक है, जनरली में IDBI या SIDBI या नाबार्ड जैसे जो बैंक होते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की जो हम बात करते हैं, जिसका करंट अफेयर हम अगला पढ़ेंगे, ये बैंक्स जनरली डेवलप किए गए थे बाय द गवर्नमेंट 1960s और 70s के टाइम पीरियड में. हालांकि नाबार्ड 1980s के टाइम पीरियड में आया है. बट IDBI and SIDBI, these banks were set up by the government for the industrial development purpose. इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे who want to set up the industries but they don't have the money. ओके, और अगर मनी आप कमर्शियल बैंक से लेंगे तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है काफी हाई होती थी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने के लिए, ताकि उनको लो इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा लोन मिल सके, IDBI और SIDBI SIDBI ये दोनों बैंकों को सेटअप किया गया था. जनरली ये बैंक इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड करती हैं. फर्क क्या होता है? IDBI 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट को अप्लाई करने के लिए रहता है, जबकि SIDBI जो है वो 25 लाख से लेकर और 1 करोड़ के अंदर अंदर, ठीक है, 99 लाख तक के अमाउंट्स को ये काउंट करता है. ठीक, अब करा क्या है IDBI ने कि इतना इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई है. फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द न्यू फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी विद लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी और बैंक गारंटी मैसेजेस ओवर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम. इट इज डेवलप्ड बाय इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. हुआ क्या है कि अगर आप कभी भी देखिए क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, ये दोनों मैसेजेस आपके पास जाएंगे. है क्या, इसको समझिए. लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है स्टूडेंट्स? जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, आप जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको लोन देने से पहले सारी की सारी चीजों को देखता है कि लोन किस लिए चाहिए, कौन पर्सन लोन ले रहा है, ठीक है, और गारंटी में क्या रखा जा रहा है. क्योंकि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो बैंक का तो पैसा चला गया. हाउ द बैंक विल रिकवर इट्स मनी. ओके, तो देखना पड़ता है कि जितना लोन लिया जा रहा है
उस लोन के अमाउंट के बराबर क्या कोई एसेट उस पर्सन के पास है या नहीं। अगर नहीं है तो लोन फिर बहुत मुश्किल से दिया जाता है। दे रिक्वायर्ड अ गारंटर। नहीं तो ऐसे तो कोई भी लोन लेके चला जाए बैंक से कि मुझे 50 करोड़ दे दो, क्या करना है जी, बस ऐसे ही घूमना फिरना है। इट्स नॉट लाइक दैट। बैंक ऐसे ही पैसा नहीं देता, और अगर बैंक ऐसा पैसा देना शुरू कर दे तो बैंक बहुत जल्दी करप्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है बैंक करप्ट, दिवालिया हो जाएगा, हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है दैट आई एम क्रेडिटिंग this much amount of money into your account on this behalf for that purpose. Getting the point? ठीक है, या फिर उसको हम बैंक गारंटी बीजी भी कह देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होता है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो अभी हाल ही में IFTAS यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और अलाइड सर्विसेज ने डेवलप किया है। इसमें लोन लेने वाली जो भी फर्म है या पर्सन है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और लोन की वैल्यू क्या रहेगी, लोन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी इंटरेस्ट रेट होगी, कब आपको चुकाना पड़ेगा, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन प्लेटफॉर्म दैट इज SFMS। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ठीक, द प्रोसेस वुड बी कंडक्टेड वाया अ मिडलवेयर एप्लीकेशन, और आप कोई ऐसे ही अचानक से नहीं जा सकते इसको लोन लेने के लिए। ये एक प्रॉपर एक मिडलवेयर एप्लीकेशन है जिसका नाम रखा गया iAct Connect SFMS। ठीक है, और ये IDBI Intech, जो IDBI का एक टेक्निकल ब्रांच है, उसने इसको डेवलप किया है। डेवलप करने का मीनिंग पर्पस क्या है, मोर ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ठीक है, बैंक करप्सी को कम करना, और जो लोन नहीं दे पाते वापस, है ना, लोन आपने ले लिया लेकिन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उन लोगों का डेटा लेकर आना। बहुत बार आज भी इंडिया में ऐसा है कि लोग जो है क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। मे बी आप लोगों के अगर बैंक में अकाउंट है एंड इफ यू हैव द क्रेडिट कार्ड्स विद यू, तो क्रेडिट कार्ड यूज करना एक शगल होता है जनरली में। दैट आई बिलीव आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड विद मी, although I'm having my account in 4 different kind of banks from private to government banks, but I do not use any kind of credit cards. बैंक्स अपनी तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसकी एक लिमिट रखी जाती है ना, 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, वट एवर, आपको उसी लिमिट के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड का यूज करना होता है। बट वट एवर मनी यू आर यूजिंग फ्रॉम दैट क्रेडिट कार्ड, ओके, विद इन 45 डेज जो मिनिमम ड्यूरेशन होती है, आपको पैसा वापस देना पड़ता है बैंक को। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव बैक द मनी, देन आपके ऊपर चार्ज लगाया जाता है और वो बढ़ता जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और बैंक को पैसा रिटर्न ही नहीं करते, और बैंक के पास में उनके लिए कुछ नहीं होता करने की, ठीक है, क्योंकि बड़े स्मॉल अमाउंट होते हैं, जैसे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 यूज कर लिया, फेंक दिया कार्ड, गुम हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। बट ये अगर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा बढ़ जाए, 10,000 का फ्रॉड करने वाले, क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले अगर 10,000 लोग भी हुए, तो आप समझिए बैंक को कितना ज्यादा नुकसान होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसी वजह से लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी प्रोवाइड की गई है। ये भी इंडस्ट्रियल बैंक है, क्योंकि इंडस्ट्री तो छोटा मोटा अमाउंट लेंगी नहीं, मोर देन 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का अमाउंट लेंगी, नहीं वापस कर पाए बैंक को तो बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा। इस वजह से ये फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द न्यू फीचर, ये पहला नया फीचर इंप्लीमेंट करने वाला बैंक बन चुका है IDBI। ठीक है, आगे चलें, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इन बिटवीन। ठीक, अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 इज रिलेटेड टू द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, नाबार्ड। ओके, नाबार्ड बैंक। अब नाबार्ड क्या है, ये एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है। विल बिगिन सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन SLC इन कर्नाटका। एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन यानी कि सफाई स्वच्छता को लेकर एक लिटरेसी कैंपेन ये चलाएगा टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश। नाउ वॉश की एक फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा, दैट इज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, वाटर sanitation and hygiene in 2000 places covering 1 lakh rural population। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं इतना कि किसको कवर अप कर रहा है, डोंट वरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू, ऑब्जेक्टिव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंपेन का। ऑब्जेक्टिव क्या है,
to focus on inculcating significant behavioral changes towards adapting good hygiene and sanitation practices. ये है इसका ऑब्जेक्टिव। तो नाबार्ड जो एक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, जो किसानों को लोन देता है, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, है ना, सीड्स वगैरह चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, नाबार्ड इज हियर बिकॉज यहाँ पर किसानों को इंटरेस्ट रेट काफी कम रखा जाता है। ओके अगर आप कमर्शियल बैंक से ट्रैक्टर का लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक ज्यादा चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट, एसबीआई ज्यादा चार्ज करेगा। दैट्स व्हाई नाबार्ड इज अ स्पेसिफिक बैंक फॉर द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल पीपल। गेटिंग द पॉइंट। और इसने रूरल एरियाज में शुरुआत कहां से हुई है? कर्नाटका से, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उस लिटरेसी प्रोग्राम का नाम क्या है? वॉश, ये इंपॉर्टेंट होगा। उस वॉश की फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखिए। और सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन है ये, इट इज अ कैंपेन, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लॉ और रूल कि फॉलो करना ही पड़ेगा। कैंपेन का मतलब किस लिए होता है? कैंपेन होता है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो शुरुआत की गई है। तो सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। बिहेवियरल चेंजेस, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स, still in India people are not very keen towards their personal hygiene or sanitation. Yes, we all see this kind of things. जनरली इंडिया में लोग ज्यादा पर्सनल हाइजीन को, सैनिटेशन को नहीं ध्यान में देते। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल दैट गो अराउंड अस, मे बी यू हैव सीन, दे आर जस्ट रनिंग इन द बिग व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहे होंगे, सडनली नीचे उनका शीशा नीचे होता है और कुछ बाहर आकर गिरता है रोड पर, मे बी अ काइंड ऑफ बॉटल, है ना, अ काइंड ऑफ पीस ऑफ पेपर और एनी चाहे वो बनाना का कोई भी छिलका वगैरह हो या कुछ भी, देखा है हम लोगों ने, आप लोग भी देखा होगा, है ना। तो ये जो हाइजीनेशन है, इसको हमें देखना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कर्नाटका, इट्स नॉट ओनली अबाउट द रूरल पीपल आर डूइंग दिस, बट the पढ़ा लिखा, the sophisticated people also doing this. Yes, so but this program is for them. चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 is related to the railways. The South Eastern Railway has launched Operation My Saheli to boost the security of women passengers in trains. It has been introduced as a, that is known as the pilot प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट वो होता है स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? क्या पायलट आकर उसको चलाता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पायलट प्रोजेक्ट का मीनिंग होता है इनिशियल स्टेजेस पे चलाया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम। इट इज ऑन द इनिशियल स्टेजेस। अगर ये यहाँ पर और छोटे लेवल पे, है ना, काफी छोटे लेवल पे चलाया जाने वाला प्रोग्राम, अब ऐसा तो नहीं पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया माई सहेली, इंडियन रेलवे ने लॉन्च कर दिया माई सहेली, नो, इट वाज साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, एसईआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आई थिंक सिकंदराबाद में है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और हुगली, आई थिंक हुगली में है। तो यहाँ पर ये रेलवे ने शुरुआत की है। अगर यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये बाकी सारे पूरे इंडिया के अलग अलग जोन्स में, रेलवे के जो 17 जोन्स है वहां पर चलाया जाएगा। तो माई सहेली है, किस लिए है? विमेन पैसेंजर्स को, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सहेली। ठीक है, तो विमेन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को ट्रेन में ध्यान में रखते हुए अब ये 3 ट्रेनों पर चलाया जाने वाला है, जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको नाम याद रखना। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस, हावड़ा इन वेस्ट बंगाल, यशवंतपुर दैट इज इन कर्नाटका, अगेन इज हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, अहमदाबाद इज इन गुजरात, एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल। ठीक है, तो हावड़ा यशवंतपुर यानी कि बंगाल कर्नाटका, बंगाल अहमदाबाद गुजरात, और बंगाल महाराष्ट्र के बीच में 3 ट्रेनों में ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, पायलट प्रोजेक्ट। देखिए सारी ट्रेनों में भी नहीं चलाया गया, सिर्फ 3 ट्रेन में चलाया गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पायलट प्रोजेक्ट। और ये सक्सेसफुल अगर रहता है ऑपरेशन माई सहेली, तो इसे और ज्यादा ट्रेनों में किया जाएगा यूज। ठीक है, अब होगा क्या इस ऑपरेशन माई सहेली में, उसको भी सुन लीजिएगा। जो भी बोगीज होंगी, उन बोगीज में मिनिमम 4 फीमेल पुलिस के जो आपके ऑफिशियल्स रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, वुमेन ऑफिशियल्स इन एवरी बोगी। ठीक है, और जनरली कहां पर होंगे? गेट के पास में, और वो राउंड भी लेते रहेंगे। जैसे जिन लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा तो उनको पता होगा कि पुलिस पर्सनल जो है वो ट्रेन में
राउंड लेते रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जहां पर पुलिस वाले आपको कहीं नजर नहीं आते हैं, ठीक है। सो एंड दिस इज फॉर 24 आवर्स, जब तक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी, टिल दैट टाइम दीज विमेन ऑफिशियल्स, ठीक, वो वहां पर बनी रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, the Maharashtra government has banned the sale of unpackaged loose cigarettes, banned, and BDs, making it the first Indian state to do so. पहला भारत का राज्य जिसने लूज सिगरेट्स और बीडीज को क्या करना बंद कर दिया है, सेल करना बंद कर दिया, अनपैकेज्ड। चलिए इसको देखते हैं क्या। महाराष्ट्र करंटली कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8 to 10% ऑफ सिगरेट सेल वॉल्यूम पूरे इंडिया में। द मूव इज एम्ड एट ensuring that customers see the graphic public health warning mandatory on cigarette packaging। किया क्या है, जो सिगरेट पीने वाले हैं, स्मोकर्स हैं, जो बीड़ी पीने वाले स्मोकर्स हैं, उनको बैन करने के लिए कि कम से कम सिगरेट्स और बीड़ीज का यूज किया जाए। अनपैकेज्ड लूज जो सिगरेट्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं भाई एक सिगरेट दे देना, 2 दे दो, 4 दे दो, 6 दे दो, इस तरीके से, तो उसको बैन किया गया है। बैन करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि लोग पूरे का पूरा पैकेट ही खरीद लें, लूज नहीं मिलेगी भाई। तो 2 तरीके से आप इसको समझिए। नंबर 1, जो मान लीजिए ऐसा पर्सन है जिसके पास पूरा पैकेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो सिर्फ 1 या 2 सिगरेट या 1 या 2 बीड़ी चाहता है, वो बैन हो जाएगा। It means if you want to purchase the cigarette, you have to purchase the entire packet of that cigarette. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीद नहीं पाओगे। It will reduce the number of smokers, number 1. Number 2, अगर आप पूरा पैकेट खरीदेंगे तो पैकेट के ऊपर जो लास्ट में लिखा है that customers see the graphic public health warning mandated on cigarette packaging, ठीक है, वो सिगरेट पैकेज को देखेंगे, उसके ऊपर जो ग्राफिक्स बने हैं, है ना, पब्लिक हेल्थ वार्निंग्स बनी है कि भाई आपको कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो देखेंगे। देखने के बाद वो सिगरेट निकालेंगे और पैकेट को फेंक देंगे। ऐसा वी हैव सीन। यस, दोज हु आर द चेन स्मोकर्स, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दिस कि लूज सिगरेट नहीं मिल रहा है या बीडीज नहीं मिल रही है, पीपल आर विलिंग टू परचेज दैट। Maybe you have seen during the COVID-19 के टाइम पर जब इंडिया में जो शटडाउन हुआ था, ठीक है, जो लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पर बहुत लंबी लाइंस आपने देखी होंगी लिकर शॉप्स के सामने। दिल्ली गवर्नमेंट ने लिकर के दाम जो थे वो ट्वाइस थ्राइस कर दिए, 2 गुना 3 गुना कर दिए। माने इफ अ बॉटल ऑफ लिकर इज कमिंग ऑफ फॉर एग्जांपल ₹200, तो उसके 3 गुना दाम कर दिए, 600 रुपए में मिलेगी, बट स्टिल पीपल वर परचेजिंग दैट वन। आप लोगों ने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, पीपल वर परचेजिंग दैट वन, दे आर रेडी टू पे ₹600। सो this kind of move, maybe it is on the other side can be done, but in my point of view it will not work. I don't know why, but it will not work. So this will add one current affair in your examination, that's it. फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो, कि लूज सिगरेट और बीडीज पर बैन कर दिया गया, कोई भी इसको बेचेगा नहीं, आपको खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदिए। नंबर 8, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश केशव जावड़ेकर एड्रेस द यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी which was convened by the president of a general assembly Volkan Bozkir under the theme याद रखिएगा, the theme of urgent action on biodiversity for sustainable development। ये बहुत बार आपको ऐसे थीम देखने को मिल जाएंगे। I do not found these summits very profitable। कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये इनका एनुअल वर्क होता है जो उन्होंने करना होता है, बट कंट्रीज को वही करना होता है जो उन्होंने करना होता है। That's why the urgent action on biodiversity for sustainable development, ये जो urgent action है ना, वो जो biodiversity है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको पिछले 10-15 सालों में बहुत जगह पर देखने को सुनने को मिलेंगे ये सारे वर्ड्स, बट nobody is actually engaging, no country is actually engaging in these things। That's why जो 16-year-old की जो स्वीडिश गर्ल थी ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने ये कहा था that why are you organizing such kind of huge summits in United Nations, in UNESCO, in UNICEF, in America, in other countries, because you countries where the
Summits are going on, only those countries are not following these norms, so there's nothing to do. You are just wasting the money and time of the people. चलिए, हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या इससे करंट अफेयर्स बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, यूएन समिट जो हुआ है बायोडाइवर्सिटी पर, 2 क्वेश्चन बनेंगे। उसको किसने अटेंड किया इंडिया की तरफ से, आंसर देंगे प्रकाश जावड़ेकर, और उसका थीम क्या था, वो थीम आप आंसर देंगे अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जान क्लियर है? ठीक है, चले आगे चलते हैं। Then we have number 9. Now India will build 100-bedded cancer hospital and 22,000-seater cricket stadium in Hull Hamel, Maldives under $800 million line of credit (LOC) extended to Maldives in 2019. The Export-Import Bank (EXIM) of India extended the LOC for development of infrastructure project in Maldives। तो पहले चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं, क्या क्या करने वाला है इंडिया। 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा, 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा मालदीव्स में। कौन सी जगह पर? हुल हुमेल, मालदीव्स में। कौन सा बैंक इसमें इन्वॉल्व है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज EXIM। The construction of the hospital will strengthen the bilateral cooperation. This and that. India will partner with Housing Development Corporation Limited of Maldives. ये important है, ठीक है। इंडिया किसके साथ वहां पर टाई अप करने वाला है फॉर बिल्डिंग द कैंसर हॉस्पिटल? हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ मालदीव्स, ठीक। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल पार्क एंड रेनोवेशन अराइवल जेटी इन हुल हुमेल। It will benefit both the visitor and the residents। जनरली क्या है इसमें, आपको सीधा सिंपल समझना है। सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने भी हाल ही में किस कंट्री में, ठीक है, नेबरिंग कंट्री नहीं देगा, ऐसा नहीं डालेगा नेबरिंग कंट्री, थोड़ा इजी हो जाता है समझना। बोलेगा किस कंट्री में, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल और एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, आंसर देंगे मालदीव्स। दूसरा क्वेश्चन जो और डीप में जा सकता है, विच बैंक इज इन्वॉल्व? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक EXIM। तीसरा जो और डीपर क्वेश्चन जाएगा, मालदीव्स के किस प्लेस पर ये सारी चीजें हो रही हैं, दैट इज हुल हुमेल। क्लियर है? बस इसके अलावा आपका 4th क्वेश्चन नहीं बनेगा इस वाले करंट अफेयर से। तो समझते जाइए क्वेश्चंस कैसे बनाता है एग्जाम में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए अगली बात करते हैं नंबर 10 पर। Now Surjit Singh Deswal, generally हम इनको कहते हैं SS Deswal, he is the Director General of ITBP Indo-Tibetan Border Police Force, has given the additional charges as the DG of Counter Terror Force National Security Guard NSG following the retirement of Anup Kumar Singh, incumbent Chief of NSG। ठीक है, आप 2-3 चीजें इसमें समझिए। सबसे पहले SS Deswal। SS Deswal सर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट IPS ऑफिसर माने जाते हैं। उन्हें ITBP के वो इस समय पर डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक। जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए एक पैरामिलिट्री फोर्स में और एक आर्म फोर्सेस में। आर्म फोर्सेस कौन सी होती है? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। क्लियर? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ऑन द सेकंड साइड वी आर हैविंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस इंक्लूड होती हैं? जो पैरामिलिट्री का मतलब क्या होता है? विच आर नॉट फुली मिलिट्री कॉम्बैट, वो पूरी तरीके से मिलिट्री कॉम्बैट नहीं है, वो जाकर बॉर्डर्स पे लड़ती नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। लेकिन वो ऑलमोस्ट आर्मी की तरह ही, आर्म फोर्स की तरह ही काम करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन सी शामिल होती हैं? CRPF, वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देन वी हैव द RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। Then we have the SSB, सशस्त्र सीमा बल। Then we have the ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force। Then we have the NSG, National Security Guard। Getting the point? Okay, तो ये हमारी क्या है? ये सब हमारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस। Getting the point? तो जो SS देसवाल सर हैं IPS ऑफिसर, अच्छा हाँ, इन सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हेड होते हैं, which we call the डायरेक्टर जनरल, वो सब IPS ऑफिसर्स होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इन्हें ITBP के DG, डायरेक्टर जनरल SS देसवाल सर को बनाया गया है। द एडिशनल चार्ज दिया गया DG का ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG,
जिनको हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, ठीक, क्योंकि इनके जो चीफ थे अनूप कुमार सिंह आईपीएस, वो रिटायर कर चुके हैं। तो टिल द टाइम नया पर्सन इनको नाम नहीं मिला है, टिल द टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी एसएस देसवाल विल बी गेटिंग एडिशनल चार्जेस ऑफ एनएसजी। इट इज काउंटर टेरर फोर्स। एनएसजी हमारे इंडिया में काउंटर टेरर फोर्स है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर करने वाली फोर्स है। आपको याद होगा 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई पर, ठीक है, तो एनएसजी ने बाद में आकर पूरा कंट्रोल किया था। अगर एनएसजी भी फेल कर जाती है स्टूडेंट्स, एक हायरार्की होती है, इफ एनएसजी आल्सो फेल्ड इन द ऑपरेशन देन हु विल कम, देन फाइनली इंडियन आर्मी विल कम, ठीक है, और इंडियन आर्मी के कमांडोज फिर आते हैं वहां पर। चलिए नंबर 11 देखते हैं। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट द अटल टनल। ये तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटल टनल। न्यूज चैनल्स में आपने देखा होगा हरी झंडी दिखाकर अटल टनल को जो है ओपनिंग किया गया, विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल एट रोहतांग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड पे बनी हुई टनल है रोहतांग में। रोहतांग पास ही ऑल नो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल के रोहतांग पास। रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है रोहतांग पास। It has been named after the late former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee. The tunnel is located above the altitude of 10,000 feet, ठीक है, 3000 मीटर की हाइट पर 10,000 फीट, ये जनरली हम इसको बात कर लेते हैं, तो इतनी ऊंचाई पर है। ये अटल टनल होने से क्या फायदा है, आप स्ट्रेटेजिकली ये टनल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। होगा क्या, अटल टनल खुल चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारी आर्म फोर्सेस होंगी वो अब 24/7 ऑल वेदर ये टनल है, चाहे बर्फ पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, दे कैन एंटर इन द अटल टनल फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश साइड एंड दे विल एग्जिट टुवर्ड्स द जम्मू कश्मीर, जबकि सर्दियों में वो रास्ता बंद हो जाया करता था, ठीक है। तो इसी वजह से स्ट्रेटेजिकली अटल टनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कैन इजीली रीच टुवर्ड्स द चाइना बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड टुवर्ड्स द पाकिस्तान बॉर्डर, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं नंबर 12 पे। चेन्नई हेडक्वार्टर्ड इंडियन बैंक, यानी कि इंडियन बैंक जो है एक उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, हैज इंट्रोड्यूस्ड अ किसान क्रेडिट कार्ड लोन scheme for Tamil Nadu fishermen. Under the scheme, Kisan Credit Card loan up to ₹2 lakhs as a working capital loan with low interest rate will be provided. Fishermen can submit the application through the Department of Fisheries along with the details of mechanized boat. देखिए तमिलनाडु, we all know that साउथ इंडियन स्टेट्स जितने भी हैं वहां पर फिशरमैन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड तमिलनाडु में फिशरमैन के लिए लॉन्च करने वाला ये पहला स्टेट बन चुका है तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फिशिंग होती है ना, सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं थ्रू द फिशरमैन, तो उनको कवर अप करने के लिए उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया गया किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट कितनी है, अप टू ₹2 लाख, यानी 2 लाख रुपए का क्रेडिट किसी भी समय फिशरमैन ले सकते हैं इंडियन बैंक से, ठीक, और इससे उनका जो भी उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट। नंबर 13, द रिलायंस लाइफ साइंसेज रिसेंटली डेवलप्ड RT-PCR किट दैट विल डायग्नोज COVID-19। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने किया है ये डेवलप RT-PCR रैपिड टेस्ट होता है ये COVID-19 के लिए, इन्फेक्शन इन अबाउट 2 आवर्स, यानी कि सिर्फ 2 घंटे में अगर आप RT-PCR किट को यूज करेंगे which is developed by Reliance Life Sciences, so within 2 hours you will get the result whether you are COVID negative or positive. These kits are called R Green kits, ठीक है, ये भी आप नाम याद रखिएगा। RT-PCR are the most accurate test being conducted for COVID-19. However, the only drawback of this test is time consumption. टाइम लेता है बहुत ज्यादा, पूरा अंदर तक इसको RT-PCR पूरा अंदर तक फेफड़े और आपके लंग्स वगैरह सारी चीजों को, ये आपका नॉर्मल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें नाक में आपका वो एक सलाइन डालकर आपका सलाइवा लेते हैं और उसे चेक कर लेते हैं, जिसका जो रिजल्ट है 4 से 5 घंटे में आपको मिल जाता है। RT-PCR में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, ठीक, बट उसका जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा होती है। गेटिंग द पॉइंट।
The R green kits only take 2 hours. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, RT-PCR किट जिसे R green kits कहा जा रहा है, किसने डेवलप की है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने, कितने टाइम में ये बता देगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, विद इन 2 hours आफ्टर द टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 14 पे। Now, Delhi CM Arvind Kejriwal has announced the launch of anti-pollution campaign युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगर आप लोग दिल्ली में हैं और न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपको दिखेगा ये बीच बीच में ये कैंपेन आता रहता है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली, एन एंटी डस्ट कैंपेन इज बीइंग इनिशिएटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू सेटल द डस्ट। अगर दिल्ली में है, बाहर निकलते हैं, तो रेड लाइट पे जब भी आप खड़े होंगे सिग्नल पे, तो कुछ वॉलंटियर्स आपके सामने आएंगे विद द होल्डिंग बैनर जिसपे लिखा होगा कि भाई अगर रेड लाइट ऑन है तो अपने कार को बंद कर दीजिए, तो इंजन ऑफ कर लीजिए। ये इसी के अंदर में है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये पूरा का पूरा बड़ा कैंपेन चलाया गया है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर ऑनवर्ड से आप मान के चलिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दीज 3 months आर वेरी वेरी डिफिकल्ट मंथ्स फॉर द Delhiites। व्हाई? नंबर 1, एक तो सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, नंबर 2, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं उसका धुआं सीधा दिल्ली की तरफ आता है बिकॉज ऑफ द विंड डायरेक्शन, और क्योंकि दिल्ली से आगे वो विंड डायरेक्शन आगे बढ़ती नहीं है, तो पूरा का पूरा जो स्मोक है पराली का वो दिल्ली में ही जमा हो जाता है, विच मेक्स दिल्ली चोक, पूरे दिल्ली को चोक कर देती है, और दिल्ली में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली द स्मॉल किड्स, एस्थमा पेशेंट्स, ये सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नंबर 15। Now, Puducherry Airport has become the Airports Authorities of India's first entirely solar-powered airport in the country। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुदुचेरी एयरपोर्ट है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, फर्स्ट एंटायरली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री। भारत का पहला पूरी तरीके से एंटायरली सोलर पावर इनबिल्ट ये बन चुका है एयरपोर्ट, विद द कमिशनिंग ऑफ 500 किलोवाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2.8 करोड़। हमेशा से ही जो आपका सोलर पावर प्लांट होता है इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, बट वो सिर्फ पहली बार में ही ज्यादा अमाउंट लगता है, आफ्टर दैट यू विल बी फ्री। ठीक है, क्योंकि आप बिजली को यूज नहीं कर रहे गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगवाए हैं। अगर आपका पूरा घर सोलर पैनल से इनबिल्ट है, सो आपके पास बिजली का बिल नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द BSES or from the thermal power plant or from the NDPL or whatever or Tata Power Limited। ठीक है, you are using the electricity directly from the sun। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, सन आपको अगर अपना बिल भेज दे दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बिल नहीं भेजेगा। तो पुदुचेरी एयरपोर्ट फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है इंडिया का जो पूरी तरीके से सोलर पावर इनबिल्ट है। नंबर 16, रशिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सिरकॉन अगेन, दिस इज द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ऊपर हमने ब्रह्मोस के बारे में पढ़ा था सुपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक है इन द आर्कटिक रीजन। The missile was fired from the Admiral Gorshkov frigate in the West Sea in the Russian Arctic area। You all know रशिया का जो पोजीशन है आर्कटिक सर्कल से कनेक्ट होता है फ्रॉम द साइबेरियन रीजन। ठीक है, द मिसाइल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, ये नहीं पूछेगा आपसे, ट्रैजेक्टरी भी नहीं पूछता है, द फ्लाइट लास्टेड ये भी नहीं पूछेगा। द मिसाइल इज ए स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये पूछा जा सकता है जनरली। एक तो मिसाइल का नाम पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरकॉन, टी साइलेंट है, सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कहां से लॉन्च की गई है? एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट, किस कंट्री ने करा है? रशिया ने करा है। बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, इसमें दिया गया स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग एंटी-शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए, जिसको नहीं पता शायद डाउट आ रहा होगा। स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग होता क्या है? आपने मिसाइल लॉन्च कर दी, एंटी शिप मिसाइल है ये, यानी कि जो समुद्र में शिप्स होती हैं उसके ऊपर ये मिसाइल छोड़ी जाएगी। अब शिप एक जगह खड़ा थोड़ी रहेगा, शिप विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ गए? स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग, इट मींस शिप जहां जहां भी मूव करेगा
वो मिसाइल उसी मैन्यूवर में मूव करेगी शिप के साथ, बट इट विल डेफिनेटली हिट इट्स टारगेट। दिस इज व्हाट द स्क्रैमजेट पावर्ड मैन्यूवरिंग इज। इसे एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा गया है। ये सुपरसोनिक से भी ऊपर, ये हाइपरसोनिक है। ठीक है, सोनिक साउंड की स्पीड के लिए काउंट होता है, साइंस के स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा। ठीक है, अगेन डिफेंस सिस्टम में आएंगे तो आपको तीनों का मैं बता दूं, बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। चलिए अगली बात करते हैं, चेकबुक। Checkbook, India's first neobank for small business owners like the kiranas, merchants, chemists, and other running proprietorships, announced the launch of its new mobile platform. With the launch, Checkbook brings world-class financial services as a massive underserved segment. अगर टीवी देख रहे होंगे, okay, Pranjali is saying when the notes will be uploaded, it will be uploaded soon, just after the class. Tomorrow, maybe. The sir is saying that tomorrow the notes will be uploaded. Don't worry about that, Pranjal. ठीक है, you will get the notes. So न्यूज टीवी में अगर आप देख रहे होंगे, चेकबुक का एड आ रहा है, चेकबुक का एक एड आ रहा है। ये इंडिया फर्स्ट न्यू बैंक। न्यू बैंक का मतलब क्या है? नया बैंक। ओके, न्यू मींस न्यू, नया बैंक है। इंडिया फर्स्ट न्यू बैंक फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। किसी की किराने की शॉप है, कोई छोटा मोटा मर्चेंट है, किसी की केमिस्ट की शॉप है, ठीक है, या अदर कोई जो है कोई भी शॉप वो रन कर रहा है, तो वो उसके लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया चेकबुक के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर आपको वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एग्जांपल के लिए, आपकी किराना स्टोर में आप मालिक हैं और आपके अंदर में 5 लोग काम कर रहे हैं। आपने उन सबका नाम फीड कर दिया चेक मोबाइल ऐप में, ठीक है, एड्रेस वो कर दिया, और किसको कितनी सैलरी मिलती है आपने वो डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में पूरा का पूरा आपका मोबाइल ऐप के थ्रू सारी चीजें चलेंगी। वो कब आते हैं, टाइमिंग क्या है, वो आपने फीड कर दी। ठीक है, वो कब छुट्टी लेते हैं, कब क्या करते हैं, हाफ डे, फुल डे, व्हाटएवर, एवरीथिंग। ठीक है, आपके किसी एम्प्लॉय ने आपसे एडवांस मांगा तो वो भी मैसेज के थ्रू उसके पास पहुंच जाएगा कि यू हैव टेकन एडवांस ऑन दिस डेट, दिस मच अमाउंट। गेटिंग द पॉइंट। ये चेकबुक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐप है, और ये पहली बार छोटे बिजनेसमैन, छोटे जो आपके बिजनेस ओनर्स है उनके लिए शुरू किया गया है। आते हैं नंबर 18 पर। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट in the country by providing 100% tap water connection in rural areas covering 2.30 lakh households. The Jal Shakti Ministry said on, the Friday on October 19th. ठीक है, अब इसको समझिए जरा। हर घर जल एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये जल शक्ति मंत्रालय है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मिनिस्ट्री अलग से तैयार की गई है बाय द मोदी गवर्नमेंट। इट इज अ डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम द वाटर डिपार्टमेंट। ये जो वाटर मिनिस्ट्री होती है, जल मंत्रालय, उससे अलग है जल शक्ति मिनिस्ट्री। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है, हर घर जल योजना। हर घर जल योजना क्या है कि जो भी स्टेट्स है इंडिया में, वो अपने स्टेट्स में हर एक घर तक, चाहे वो रूरल एरियाज में है या फिर वो अर्बन एरियाज में है, टैप वाटर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि नल से पानी प्रोवाइड करवाएगा 100%। समझ में आ रही है बात? जनरली जो हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो वी आर हैविंग इन अर्बन एरियाज ऑलमोस्ट 100% टैप कनेक्शन होता है। सबके घरों में टैप होती है, कनेक्शन दिया हुआ है सरकार ने, पानी आता है आपके पास में, दैट इज अदर थिंग। प्रॉब्लम वेयर इज वी कैन सी इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में टैप कनेक्शन बहुत ज्यादा कम होता है। तो गोवा वो पहला स्टेट बन गया स्टूडेंट जिसने हर घर जल योजना के अंडर में, विच इज स्टार्टेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं टू रूरल इंडिया, टू रूरल एरियाज ऑफ गोवा। क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, न्यूजीलैंड has knocked off Japan for the strongest passport in the world according to the latest global passport index compiled by global financial advisory firm Arton Capital. The US passport ranked 21 and India's 58. तो समझ लीजिए इसको। जापान को भी थोड़े टाइम पहले ही बड़े लंबे टाइम तक जापान रहा था जिसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माना जाता है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर बाद में आते हैं।
कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, कौन सी फर्म लेकर आ रही है? एटम कैपिटल। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 58, यूएस का रैंक कितना है? 21। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितनी कंट्रीज में आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। गेटिंग द पॉइंट? स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट माने कितनी कंट्रीज में आपका पासपोर्ट एक्सेप्ट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी कंट्रीज आपको वीजा और अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वीजा और अराइवल यू ऑल नो, आप लोगों में से अगर कोई फॉरेन कंट्री में विजिट किए हैं तो सबको पता होगा कि आप फॉरेन कंट्री में जब जाते हैं तो पासपोर्ट के साथ साथ आपको वीजा भी चाहिए होता है। वीजा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जनरली वीजा का मतलब होता है दैट यू व्हाट टाइम ड्यूरेशन यू वांट टू स्टे इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये एक लीगल तरीके से आप किस कंट्री में कितने टाइम तक रहना चाहते हैं, किस पर्पज से आए हैं, उसके लिए वीजा होता है। We all know that different types of visas are there। ठीक है, स्टूडेंट वीजा होता है, मेडिकल वीजा होता है, टूरिज्म वीजा होता है, वर्क वीजा होता है ना, अलग अलग तरीके के वीजा होते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक जो वीजा होता है दैट इज द वर्क वीजा, क्योंकि कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री का पर्सन आकर हमारी कंट्री में जॉब करे और हमारे पर्सन की जॉब ले जाए, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट वीजा, ठीक है, मेडिकल वीजा, टूरिज्म वीजा सबसे आसानी से आपको मिलेगा, स्पेशली टूरिज्म वीजा। तो इसमें एक फैसिलिटी होती है वीजा ऑन अराइवल की। इंडिया से फॉर एग्जांपल आप मॉरिशस गए घूमने के लिए, मालदीव्स गए, मालदीव्स और मॉरिशस जो है ये दोनों कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। इट मींस यू नीड नॉट अप्लाई वीजा पहले, अर्लियर, बिफोर गोइंग टू दैट कंट्री। आपको वीजा अप्लाई करने की नीड नहीं है पहले। आप जाइए, एयरपोर्ट पे उतरिए, जब आपका इमिग्रेशन होगा तो वहीं पर आपसे पूछेंगे जनाब किस लिए आए हैं? सर घूमने के लिए आए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो 10 दिन का वीजा वहीं पर लगाकर आपको दे देगा, वीजा ऑन अराइवल, दिस इज व्हाट वी कॉल। तो सबसे ज्यादा कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाने वाला पासपोर्ट अब न्यूजीलैंड का है। सबसे ज्यादा कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा जिस पासपोर्ट पर आपको मिल रही है वो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे चले। नंबर 20, नाउ फ्लिपकार्ट ओन्ड फोन पे। आप लोग यूज करते होंगे शायद फोन पे ऐप, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, है ना, अमेजॉन और भी कई सारे। तो अब क्योंकि डिजिटल का जमाना चल रहा है तो फोन पे एक ऐप है जो आप यूज करते हैं। किसने ओन किया? फ्लिपकार्ट ने। बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है, हु ओन द फोन पे? फोन पे किसकी ओनिंग कंपनी है? फ्लिपकार्ट। याद रखना, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हैज लॉन्च कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो फोन पे ने एक कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करा है जिसका नाम रखा गया कोरोना केयर। किसके साथ पार्टनरशिप में है? बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, का नाम आपने सुना होगा। द पॉलिसी इज प्राइस्ड एट ₹156 with an insurance cover of ₹50,000 for a person aged under 55 years, and the cover is applicable at any hospital offering coronavirus treatment, a statement said। कहने का मतलब है अगर आप ₹156 का प्रीमियम भरते हैं, ठीक है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के थ्रू फोन पे को, तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का कवर अप देगा। ठीक है, कितनी एज से नीचे? 55 ईयर्स से नीचे। अगर आप कोरोना पेशेंट है, किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ₹50,000 का इंश्योरेंस कवर मिलेगा विद अ मिनिमम ऑफ ₹156। ये पॉलिसी का प्रीमियम है। ₹156 की आपको पॉलिसी मिल रही है। समझ आ गई? क्लियर है? तो याद क्या रखना है? बजाज आलियांज, याद रखना है फोन पे। किसने, कौन ओन कर रहा है फोन पे को? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। ठीक है, पॉलिसी का नाम क्या है? कोरोना केयर। कितने पैसे में? 156 में। कितना कवर अप करेगा? ₹50,000। एज 55 और 55 साल उससे नीचे का। ठीक है, और ये किसी भी हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर रहा है वहां पर आपको ये अवेलेबल होगा। चलिए नंबर 21, उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल on Saturday said
The movement of women police personnel in Lucknow will be inculcate a feeling of pride and safety for women in the city. The governor spoke while inaugurating the Safe Safety Project. बस ये याद रखिए, आनंदीबेन पटेल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है कहाँ की, गुजरात की, ठीक है, तो वो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, a 180-day long campaign under which the police and other department will work towards safety of women. Safe Safety Project कितने दिन तक चलेगा? 180 days तक. किसके लिए है? Safety of women के लिए. In statement issued by the UP Raj Bhavan etc etc that can be done. 100 pink scooties को flag off किया गया. नहीं पूछेगा. Lucknow is among the 8 cities in the country. हाँ ये है. Lucknow is among the 8 cities, 8 other cities in the country selected for Safe City Project. ठीक है. The central government has approved the project for Lucknow at total cost of rupees 194 crore with an aim to strengthen security for women in public places. आपके लोगों के लिए टास्क है. टास्क ये है, who are the rest of the 7 cities of the country जहां पर Safe City Project को लखनऊ के साथ लॉन्च किया गया है ना? ढूंढ के और फिर मुझे बताइएगा. डन. सेफ सिटी प्रोजेक्ट लखनऊ में इनोग्रेट किया गया है और 8 और सिटीज में इसको चलाया गया है. 180 डेज का. अगले आइए, नोकिया मोबाइल कंपनी. अगर चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं जब तक मैं वो डिसाइड कर. नोकिया किस कंट्री की कंपनी है? कंट्री. चलिए आंसर दीजिए जरा. मीनवाइल मैं इस करंट अफेयर को पढ़ता हूं जरा. तब तक आप मुझे आंसर दीजिए कि नोकिया किस कंट्री की मोबाइल कंपनी है. सो नोकिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून. ओके, नोकिया कंपनी को किसने सेलेक्ट किया है? नासा ने. नासा क्या है? ये आपकी स्पेस एजेंसी है. कहाँ की? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. उसने नोकिया को किस लिए सिलेक्ट किया है? It is the first. Taranpreet Singh saying is Korea. It's incorrect answer. कोई और? Anyone else? Taranpreet Singh, it is a wrong answer बेटा. ठीक है, कोरिया की कंपनी नहीं है. And you have not specified which Korea, north or south. Okay, but nevertheless it's not from Korea. Gaurangi Mehrotra is saying Finland. Absolutely correct, Gaurangi. From Finland. नोकिया कंपनी इज देयर. गुड आंसर. फिनलैंड की है नोकिया कंपनी. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिनलैंड में जहां पर ये कंपनी है उसके पास में एक रिवर मूव करती है. रिवर का नाम नोकिया है. फिनलैंड में एक रिवर है जो मूव करती है, फ्लरिश करती है. उस रिवर का नाम नोकिया है और कंपनी ने उस रिवर के नाम पर अपना नाम रखा है नोकिया. वही रिवर के पास में उसका थोड़ा हेडक्वार्टर्स है. गुड आंसर फिनलैंड. गौरंगी. ओके, सो नोकिया क्या बन चुकी है? इट इज द फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून. नासा मून के ऊपर बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो उसका कहना है कि नोकिया फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड करेगी ऑन मून. नासा एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून बाय 2024 and dig in for a long-term presence under the Artemis program. The first wireless broadband communication system in space will be built on the lunar surface in late 2020. ये जो आर्टेमिस है ये एक्चुअली में ये आपका वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो नासा लॉन्च करने जा रहा है लेट 2020 में ऑन मून. ठीक है, और वहां पर जो फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क जो चलाएगा मून पर उसको ऑर्डर दिया गया है नोकिया को. Gaurangi Mehrotra is saying that Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad, Lucknow are the 8 cities. Fantastic, Gaurangi. Good answer. जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में लखनऊ के अलावा जो बाकी 7 सिटीज हैं वो गौरांगी ने आंसर दिया है. दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड लखनऊ. देखिए 4 तो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑलरेडी हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई. देन वी आर हैविंग द साइबर सिटीज बेंगलुरु एंड हैदराबाद एंड अहमदाबाद. गुड आंसर. लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 23. Haryana has been ranked at the top in the Anemia Mukt Bharat AMB. हरियाणा ने क्या किया है? टॉप किया है. इसी में तो टॉप किया है. ठीक है, इंडेक्स among the 29 states in India. The news was shared during the State Health Society of the National Health Mission's 8th governing body meeting in Chandigarh. Rajiv Arora,
Additional Chief Secretary of Health Department informed that Haryana has been ranked at top slot with an AMB index of 46.7 in a recently released scorecard by Union Ministry of Health and Welfare. He added that there is a total 34 national programs that are being run under the National Health Mission program. चलिए उसके ऊपर हम बाद में आते हैं. सबसे पहले हरियाणा ने टॉप किया है. किसने टॉप किया? एनीमिया मुक्त भारत, ये योजना है. देखिए स्टूडेंट्स, आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से या न्यूज पे देखते हैं, एक और चीज मैं आपको बता दूं. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप छोड़ देते हैं. Those who are reading newspapers in English language, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ये काफी अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं. द हिंदू पढ़ सकते हैं. बाकी सब न्यूज़पेपर आई डोंट थिंक इतने अच्छे. हिंदी अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो उसमें भी हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर हिंदी में आता है, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, ठीक है. उसी तरीके से अमर उजाला एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर जो हिंदी में काफी अच्छी न्यूज़ को कवर अप करता है, ठीक, ये आप पढ़ सकते हैं. ना द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप न्यूज चैनल्स अगर देखते हैं, और अगर आप न्यूज चैनल्स आप देखते हैं, जी न्यूज चैनल देखते हैं, एनडीटीवी न्यूज चैनल्स देखते हैं, आप रिपब्लिक भारत अर्णब गोस्वामी का न्यूज चैनल देखते हैं, आप इंडिया टीवी रजत शर्मा का, या आज तक देखते हैं अंजना कश्यप का, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं. वो न्यूज चैनल्स नहीं है, वो आपके एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको वाकई में न्यूज देखने हैं न्यूज चैनल्स पे, गो फॉर सरकारी चैनल डीडी न्यूज, ठीक है. डीडी न्यूज पे जाइए. रात में सोने से पहले जो लेट नाइट न्यूज आती है 11 o'clock से आई थिंक शुरू होती है, 11 से 11:30 के बीच में, टेस्ट न्यूज चैनल फॉर योर करंट अफेयर्स. उसमें वो सारी न्यूज होंगी जो अभी जितने मैंने न्यूज चैनल निकला उसमें नहीं मिलेगी. उसमें कोई फालतू डिबेट नहीं होती है, डिबेट होती भी तो बड़े सलीके से होती है. उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रधानमंत्री इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में कौन सा बायलैटरल डील की है, इंडिया कौन सी कंट्री के साथ में अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन में या आपका नेवल ऑपरेशन में, ठीक है. ये सारी चीजें आएंगी. पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल पास हुए ये आपको पता लगेगा. सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं वो आपको वहां से मिलेगा. कौन सी योजना चलाई, आपने कभी भी नहीं सुना होगा आज तक वगैरह पे, इन चैनलों पे हरियाणा टॉप द एनीमिया मुक्त भारत, कहीं पढ़ा आपने? कहीं सुना नहीं सुना होगा. डीडी न्यूज ने न्यूज सुनाई है, सरकारी चैनल ये न्यूज सुनाता है, और वही न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट बनती है. अगर आप न्यूज पेपर से नहीं पढ़ते वो फॉर डीडी न्यूज, या फिर अगर रेडियो सुनते हैं तो रात को आई थिंक 10:30 पर आधे घंटे का 15 मिनट्स की आती है इंग्लिश न्यूज 104 उस पे सरकारी जो आपका एफएम चैनल है, और 15 मिनट्स का आएगा आपका इंग्लिश में सेम न्यूज, आप वो भी सुन सकते हैं. पूरे दिन भर की इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स की न्यूज सारी वहां पर आपको मिलेंगी. चलिए, तो एनीमिया मुक्त भारत ये एक परियोजना है, एक पॉलिसी है, ठीक है, एक योजना है, प्लानिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की, जिसमें एनीमिया एक बीमारी होती है, अभी ऑल नो. और किसकी वजह से एनीमिया बीमारी होती है, वी ऑल नो कि लैक ऑफ आयरन की कमी होती है, तो आपके बॉडी में एनीमिया नाम का एक रोग हो जाता है जिसमें ब्लड कम बनता है, ठीक है. तो इंडिया में इश्यू बहुत ज्यादा है. हरियाणा ने इसको क्रॉस कर लिया है. ये जो योजना चलाई गई थी कि भारत को मुक्त करना है, फ्री करना है फ्रॉम एनीमिया, उसमें हरियाणा ने टॉप स्पॉट गेन किया है. इंडेक्स में उसको रैंक नंबरिंग मिली है 46.7, ठीक है. चलिए नंबर 24 पे बात करते हैं. Number 24, the Kerala has become the first state in country to set floor prices of 16 varieties of vegetables. Kerala CM Pinarayi Vijayan informed on 27th of October. He said the scheme would come into effect from November 1st, 2020. ये क्या चीज है समझें. केरला क्या बन चुका है, फर्स्ट स्टेट. किस चीज में, फ्लोर प्राइसेस ऑफ 16 वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स. फ्लोर प्राइसेस क्या होती है, फ्लोर प्राइसेस का सीधा सीधा मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो अलग अलग 16 वेजिटेबल्स हैं
वैरायटी द, हालांकि आपको वेजिटेबल्स नहीं पूछेगा तो डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। 16 जो डिफरेंट वैरायटीज है वेजिटेबल्स की, उसका फ्लोर प्राइस डिसाइड कर दिया गया, यानी कि इतनी ही कीमत पे बिकेगा। जब भी आप मंडी में जाते हैं या बाजार जाते हैं परचेज करने के लिए वेजिटेबल, तो आप पूछेंगे टमाटो कितने का दिया भाई, ये कैबेज कितने का है, कॉलीफ्लावर कितने का है, ठीक है, बीट रूट कितने का है, तो अलग अलग आपको प्राइस मिलेंगे। अरे भाई वो तो 50 रुपए किलो दे रहा है, आप 60 रुपए किलो दे रहे हैं, अलग प्राइस होता है ना। फिक्स फ्लोर प्राइस का मतलब ये होता है, फ्लोर प्राइस ऑफ 16 वैरायटीज वेजिटेबल्स, दैट स्टेट विल डिसाइड द प्राइसेस ऑफ द वेजिटेबल्स, और आपको उसी प्राइस पे वेजिटेबल मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, यू कैन नॉट डू द मोल भाव बार्गेनिंग, यू कैन नॉट डू, अरे भाई इतने का लगा ले, नो इट कैन नॉट। फ्लोर प्राइसिंग का मतलब ये होता है। तो ऐसा करने वाला केरला पहला स्टेट बन गया, और 1 नवंबर 2020 से स्कीम शुरू हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज अ 6-year-old बांग्लादेशी बॉय अंजर मुस्तीन अली या मुस्तीन अली won a special prize of $1,000 for his artwork in the global art competition organized by the Indian Council of Cultural Relations (ICCR). Okay, painting competition named, पेंटिंग कंपटीशन का नाम देखिए, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, ये है उस कंपटीशन का नाम, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें 6 साल के बांग्लादेशी बॉय अंजर मुस्तीन अली ने $1,000 का प्राइज जीता है। इसमें 8,008 वर्कर्स आए थे अपनी एंट्रीज जिन्होंने भेजी थी, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नंबर 26, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पार्टिसिपेटेड इन द 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू कोरोना वायरस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये 10th मीटिंग है, किस चीज की, इंडिया यूके, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग की। थीम क्या है, कोरोना वायरस, ग्लोबल रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Speaking on the occasion, Mrs. Sitharaman said, India-UK economic ties are important as together they are two of the world's top 7 economies with combined GDP over $5 trillion. तो यहाँ पर सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि 10वें इंडिया यूके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, आंसर विल बी निर्मला सीतारमन, ठीक है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। हालांकि कभी कभी लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है। नंबर 27, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और व्हाट वी कॉल द मेडिसिन ऑफ 2020 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू हार्वे जे ऑर्चर अमेरिका, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका के, एंड माइकल हॉचन ऑफ ब्रिटेन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। अभी तक आपने हेपेटाइटिस ए, बी, ज्यादा हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया है। 2 जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका के हैं, एक है इंग्लैंड के। हम लोग हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, अगले महीने 10th of December को डिक्लेयर होंगे नोबेल प्राइजेस, जो वर्ल्ड के सबसे महान सबसे बड़े नोबेल प्राइजेस माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्राइज डिक्लेयर किया गया है वो है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, या फिर इसे मेडिसिन भी कहते हैं पॉपुलरली। द हेड ऑफ द नोबेल कमिटी थॉमस पर्लमैन हैज अनाउंस्ड द विनर्स इन स्टॉकहोम, ठीक है। This year's Nobel Prize is awarded to 3 scientists who have made a decisive contribution to the fight against blood-borne hepatitis. ये एक अलग तरीके की बीमारी होती है blood-borne hepatitis, a major global health problem that causes cirrhosis and liver cancer. समझ गए होंगे, ठीक है। blood-borne hepatitis जिससे cirrhosis और liver cancer जैसी बीमारियां होती हैं around the world, उसको ट्रीटमेंट करने में अब बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया है कि किस वायरस की वजह से ये ब्लड बॉर्न डिजीज या सिरोसिस या लिवर कैंसर किस वायरस की वजह से होता है, तो वो हेपेटाइटिस सी। तो नाम याद रखेंगे तीनों साइंटिस्ट का और किस कंट्री से हैं, कौन सी बीमारी को इन्होंने वो किया है, ठीक के बारे में पता लग पाएगा हमें, और कौन सा वायरस इन्होंने डिस्कवर किया है।
चलिए नंबर 28, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे MOU कहते हैं, हैज बीन साइंड बिटवीन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, दिस इज ISLRTC, एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, यानी भारत का साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, साइन लैंग्वेज सिंबल्स को साइन लैंग्वेज जो होती है उनके ऊपर रिसर्च करता है वो ट्रेनिंग सेंटर, और हमारा NCERT, ठीक है, जो जिनकी स्कूलों में किताबें लगी होती हैं, टू मेक एजुकेशन मटेरियल एक्सेसिबल फॉर हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन. Hearing impaired children, it is a historic decision for people with difficulties in speaking or hearing and will empower differently abled persons. Most important, काफी ज्यादा important है ये, ठीक है. देखिए हमें पता है कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं उन्हें साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है, साइन लैंग्वेज के थ्रू. तो उस साइन लैंग्वेज को NCERT के साथ कोलैबोरेट करके अब वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी स्कूलों में आम बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं. तो उस एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है. गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए नंबर 29, जस्ट 2-3 और है हमारे पास, 29 32 तक हमारे पास करंट अफेयर्स है. द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP, किसने, देखिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% दिस फाइनेंशियल ईयर 2021. इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 9.6% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, पहले 3 या 6 मंथ्स में, which is reflective of the nation's lockdown and the income shock experienced by households and firms due to the COVID-19 pandemic. The World Bank earlier in June has estimated the Indian economy to shrink by 3.2% in the current fiscal. ठीक, तो 9.6% तक माने बाय कॉन्ट्रैक्टेड बाय 9.6%, यानी जितनी अभी हमारी GDP है तो ऑलमोस्ट 9.6% वो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि सिकुड़ जाएगी. कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ने से है फाइनेंशियल ईयर 21 में. और वो क्यों होगा, क्योंकि जो नेशनल लॉकडाउन हुआ था, हालांकि अब लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है पूरा, ठीक है, उससे जो इनकम शॉक एक्सपीरियंस हुआ था, जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, जो जॉब चली गई थी लोगों की, और उससे जो पर कैपिटा इनकम था वो नहीं बढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. उसकी वजह से, ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इंडिया की जो GDP ग्रोथ थी वो कम हो गई. नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ था. नंबर 30, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द रुद्रम, एन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम. It has been developed by Defense Research and Development Organization, that is DRDO. The missile was test fired from the primary test platform Sukhoi 30 fighter aircraft of the East Coast. ठीक है, अब ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, देखिए जब भी हमारा कोई भी फाइटर जेट कहीं पे उड़ता है तो दूसरी जो आपका एक एयरबॉर्न सिस्टम होता है दूसरी कंट्री का, एनिमी कंट्री का, पता लगा लेता है कि कौन कौन से हमारे आसपास में फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं. ठीक है, वो रेडिएशन के थ्रू पता लगाता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है वो रेडिएशन छोड़ते हैं, उन्हीं रेडिएशन को वो एयरबॉर्न सिस्टम पकड़ता है. अभी मिसाइल से क्या होगा, रुद्रम से, कि वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि वो जो रेडिएशन जो पकड़े जाते हैं उन रेडिएशन को खत्म कर देगी, जिससे जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, वो रेडार पर नहीं दिखेंगे. ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो रेडार के थ्रू कैप्चर किया था रेडिएशन के थ्रू, वो रेडिएशन ही खत्म हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट. मिसाइल का नाम है रुद्रम. ये कौन सी मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है. किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया, सुखोई 30 MKI. ये इंडिया का प्रीमियम फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रशिया से हमने लिया है. डेवलप किसने किया है, DRDO ने. Number 31. Kati Bihu is one of the sets of 3 Bihu festivals. These are the agriculture festivals was celebrated in the state of Assam. The Kati Bihu is also known as the Kangali Bihu, the festival of the poor. The word Kongal means poor, is celebrated in mid-October when the crops are at growing stage in the granaries of the farmers' development. ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. अलग अलग तरीके के आपके एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स होते हैं.
जैसे नॉर्थ इंडिया में बैसाखी मनाया जाता है, साउथ इंडिया की साइड में पोंगल होता है, तो जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है असम का, वहां पर बिहू मनाया जाता है, ठीक है। और कटी बिहू, ठीक है, ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। कटी बिहू को कंगाली बिहू भी कहते हैं, ठीक। तो कंगाली बिहू माने पुअर से ये रिलेटेड है, और ये आपका एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, जैसे बैसाखी और पोंगल रहता है। आ जाते हैं नंबर 32 पर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, दैट इज MHA, जिसके हेड है अमित शाह, हैज अमेंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, omitting a provision requiring payment of honorarium to punch and sarpanch, village head, in the newly created union territory. The amendment law also said that Halka Panchayat shall be required to get its accounts audited by a chartered accountant every year. Halka means the area comprising a village or contiguous number of villages determined by the government. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जब से जम्मू कश्मीर से उसके स्टेट का स्टेटस हटाया गया है और उसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से बहुत सारे चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं। इसमें नया चेंज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में चेंजेस किए हैं। चेंजेस में क्या किया, ओमिट कर दिया प्रोविजन, ओमिट माने हटाना, ठीक है, ओमिट करने माने हटाना, ए प्रोविजन ऑफ रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू पंच एंड सरपंच इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी। द अमेंडमेंट लॉ आल्सो हैड द हल्का पंचायत शेयर, जो ऑनरेरियम मिलता था पंच को, पंचों को और सरपंचों को, ठीक है, उस प्रोविजन को हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। जो पंच और सरपंच होते हैं, ठीक, उनको एक पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम मिलता था, ऑनररी पेमेंट मिलती थी जिसको हम कहते हैं, वो ओमिट कर दिया है। और हल्का पंचायत, हल्का का मतलब यहाँ पर जैसे तालुका, उत्तर प्रदेश साइड में तालुका कहते हैं, है ना। तो जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है विलेज, कई सारे विलेज को मिलाकर बनेगा तालुका, कई सारे तालुका को मिलाकर बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनेगा स्टेट, सब स्टेट्स को मिलाकर बनेगा कंट्री। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तो हल्का जो है ये कंप्राइजिंग है विलेजेस का, कई सारे विलेजेस को मिलाकर या नंबर ऑफ विलेजेस को मिलाकर जो एरिया तैयार किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, दैट इज नोन एज द हल्का। इट्स नॉट लाइक हल्का माने हल्का भारी वाला, वो नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो दीज आर द टॉप 32 करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी भी स्टूडेंट का है तो लेट मी नो, किसी भी करंट अफेयर्स से व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। Okay, I hope, sir, any app for daily current affairs? तरनप्रीत बेटा, करंट अफेयर के लिए ऐसा कोई मैं ऐप को नहीं प्रेफर करता, मैं आपको बताता, बिकॉज ऐप में बहुत बार जो करंट अफेयर्स की न्यूज आती हैं, जो करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, वो उसमें कई सारी मिस्टेक्स मैंने देखी हैं। इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर कोई ऐप बता दीजिए। आई डू नॉट प्रेफर एनी काइंड ऑफ ऐप, बिकॉज ऐप में न्यूज की ऑथेंटिसिटी को हम नहीं वो कर सकते, ठीक है, कि ऑथेंटिक न्यूज है या नहीं। आपको फिर उस ऑथेंटिसिटी के लिए आपको या तो न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर को प्रेफर करना पड़ेगा। हाँ, आप न्यूज मैगजीन्स को ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स में आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप डेली की न्यूज सुन लीजिए, 15 या 20 मिनट का, मैक्सिमम हाफ एन आवर का, आज के दिन का जो लास्ट 11 या 11:30 बजे के आसपास वो न्यूज आता है, आप उसको सुन लीजिए, वहीं से आपको पूरे दिन के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो डेली में तो वो मैं करूंगा। ऐप आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी कोई ऐप यूज नहीं करता किसी भी करंट अफेयर के लिए। आई ऑल्सो गो टू द न्यूज पेपर्स, द मैगजीन्स एंड द न्यूज चैनल्स, जो डीडी न्यूज को मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है करणप्रीत, ओके।
Okay then, so I'm just winding up the session. Thank you so much for joining me in the current affairs of October 2020. Be safe at your place. Thank you so much. Bye.